landscape. Our landscape. Our session today is designed to cut through the complexity and highlight what truly matters. We are delighted to have with us Mr. Sandeep Agarwal, co-founder and fund manager at Sovilo Investment Managers, who will share his thoughts and insights and strategies for navigating these shifts under the theme Signals in the Noise, Slowdown, Stimulus, and Strategic Shifts. Joining him is Ms. Padmavati Udecha, who heads research at Sovilo and brings valuable insight to the discussion. We'll cover the following topics today. Quarter 1 financial year 2026 earnings season highlights, realigning ties, friends or frenemies, Middle East surge, India's stake, employment trend and impact on consumption. If you have any questions during the session, please feel free to drop them in the chat box. We'll take them in the Q&A segment. With that, I hand it over to Mr. Sandeep Agarwal to take us through his views. Sandeep, you can take it for floor is all yours. Good evening, everyone, and thanks for joining us on a Friday evening. We have seen a lot of turbulence in last few weeks, from most favored and most close friend of US to probably we enabling the Russian-Ukraine war and whatnot. So a lot of blames are also coming. A very interesting and little bit of turbulent time. So first of all, our investment philosophy, which we have built this business on, remains same: scale, return, technology, leadership, and governance. And for us, leadership is very, very important. We put almost 90% weight on leadership along with governance. Technology and return and scale are obviously very, very important. But generally, we have seen wherever leadership and governance is there, rest of the things fall in place sooner or later. So that continues to be our investment philosophy, and we abide by it, and we evaluate all our current investments and future investments on this philosophy. These are some of the achievements which we have been highlighting. We have been selected by Finance Outlook magazine twice as 10 most promising portfolio management service providers. We have also been consistently recognized by PMS AIF World for 14 months in a row in the peer group. So most importantly now, coming to what is happening, Indian markets CY25 has been the worst performing market. As you can see, we have underperformed almost everyone on the global front. And within that also, if you see, barring financial services, metals, auto, and banking, rest of the segments have given tremendous pain, particularly IT and realty. Despite rate cuts, that is very interesting. That generally, there is an inverse correlation between realty and interest rates. But despite that, we have seen that, realty index has also gone down. What are the important things which have happened post last webinar? So we all know that there was a very fiery speech by Prime Minister to reform the economy, to revive the growth on the Independence Day. And I think जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 2 स्लैब होना चाहिए, 5% एंड 18% का, एंड एक 40% का तो लग्जरी एंड सिन प्रोडक्ट्स के लिए होगा. आई थिंक ये सिंप्लीफिकेशन बहुत काम आएगा. सिंप्लीफिकेशन से इट हेल्प्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑल्सो lot of goods like AC and everything which are at higher GST can move down. So there will be some boost to the economy. And हमने देखा है taxes are always a zero sum game. आप जितना GST कट करोगे उतना डिमांड इंक्रीज होगा. तो बेसिकली आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में 3-6 महीने शायद थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में वॉल्यूम से कंपेंसेट हो जाता है. एंड दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू. एक बहुत अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है. वी हैव बीन अपग्रेडेड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 18 years टू BBB.
एंड जो रीजन दिया गया है, जो हमें सबको मालूम है, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड एट दैट साइज मे बी द ओनली ग्रोइंग इकोनॉमी एट दैट पेस. अनफॉर्चुनेटली थोड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट भी हुआ है. प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे ऊपर पहले 25% पेनल्टी लगाई, हमारी एक्सपेक्टेशन 15% की थी, एंड उसके बाद फिर से 25% लगाई है. एंड उनका लगाने का रीजन है कि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, उसके कारण रशिया को पैसा मिलता है और उस पैसे से रशिया यूक्रेन के वार को फंड कर रहा है. अगर आप फैक्चुअली डेटा देखें तो ये बिल्कुल गलत है. रशियन इकोनॉमी बिफोर यूक्रेन वार जब स्टार्ट हुआ था, वहां पे जहां जहां थी, वहां से आज के दिन में बहुत स्ट्रांग हुई है. और अगर इंडिया का ऑयल का इम्पैक्ट निकाल दे तो भी वो बहुत स्ट्रांग है. मतलब हमारा इम्पैक्ट बहुत मिनिस्क्यूल होगा अगर होगा भी. और हमसे बहुत ज्यादा तेल और गैस यूरोप एंड अमेरिकन कंपनियां खरीद रही है. तो ये एक सिर्फ ब्लेम गेम है. एंड अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है. हम नेट रिसीवर और ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है यूएस से, बिकॉज हमारा सर्विस एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है. हालांकि हमारा गुड्स एक्सपोर्ट बहुत मिनिस्क्यूल है, 0.69% है. एंड आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटेजी की कोई जवाब न दो, विच चाइना ऑल्सो डिड इनिशियली एंड दे बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. आई थिंक वही अपना भी वही स्ट्रेटेजी, एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज हैंडलिंग इट राइटली इन दैट वे. अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप देखेंगे आरबीआई, जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई ने बहुत अच्छे से रेट कट किया था, बुलेट रेट कट किया था, लिक्विडिटी इन्फ्यूज की थी. फिर भी अगर हमारा बॉन्ड मार्केट आप देखोगे तो बॉन्ड मार्केट 10 ईयर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ रेट कट हुआ ही नहीं है, या उसको कुछ तरह का डर है. एक रीजन ये है कि आरबीआई ने अपनी एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड को विड्रॉ कर लिया था. दूसरा मुझे लगता है जो सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो टैरिफ आया है, इसके कारण लोगों को लग रहा है कि अभी फिर से थोड़े चैलेंजेस आएंगे, एंड उसके लिए भी बॉन्ड रेट थोड़ा उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है जो करना चाहिए. एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मुझे ये लगता है कि जब तक फेड का रेट कट नहीं आएगा, तब तक इंडिया में भी अब रेट बॉन्ड मार्केट एटलीस्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. हो सकता है आरबीआई और 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट आगे जाके कट कर दे. वो भी मुझे काफी डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि अब कट करना थोड़ा रिस्की जोन में चले जाएंगे. बट एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस तरह से इन्फ्लेशन नीचे आते जा रहा है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि हमारी जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है वो भी बहुत नीचे आ जाएगी. हालांकि रियल ग्रोथ ऑफ रेट विल बी गुड, विल बी ओके 6.8 6.9, बट नॉमिनल ग्रोथ रेट कैन ऑल्सो फॉल टू 9-10%, विच इज क्वाइट लो. जो आरबीआई की लेटेस्ट मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने रेट्स को अनचेंज रखा है, एंड उन्होंने फ्यूचर पे अभी तक कोई खास कमेंट नहीं किया है. उन्होंने वही अपना से मेंटेन किया कि वी विल बी डेटा ड्रिवन. एक जो बहुत अच्छा हो रहा है कि हमारे इंडिया के इन्वेस्टर, दो चीजें हो रही है. एक, इंडिया में इक्विटी पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, और दूसरा जो अवेयरनेस है इक्विटी का वो काफी बढ़ रहा है. तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो एफडी का पैसा था वो धीरे धीरे एसआईपी या एफआई म्यूचुअल फंड्स में मूव हो रहा है. और जो म्यूचुअल फंड का पैसा था जो काफी एक साइजेबल हो गया है, उसमें से कुछ पैसा अभी अल्टरनेट एसेट्स में, पीएमएस में, एआईएफ में भी जा रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हम ये जो इतना सीवियर सेलिंग प्रेशर हुआ है एफआईआई का, उसको हम झेल पाए हैं. और इतना सेलिंग होने के बाद भी अगस्त में अगर आप देखेंगे करीब करीब 24,000 करोड़ का एफआईआई आउटफ्लो हुआ है. उसके बाद भी हमने इसको पूरा ऑब्जर्व कर लिया, और जो एसआईपी के नंबर्स आ रहे हैं और जो म्यूचुअल फंड के इनफ्लो के नंबर आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है. तो डीआई डोमिनेट कर रहा है. एफआईआई का जो इंडियन मार्केट में स्टेक है वो मेरे ख्याल से अभी ऑलमोस्ट 17 के नीचे जा चुका है, विच इज वेरी वेरी लो. नाउ सबसे इम्पोर्टेंट है अर्निंग्स. फाइनली स्टॉक्स तो अर्निंग्स पे ही चलते हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग दो टेबल हमने लगाई है. uh, सब कोई कहते हैं कि मिड कैप महंगे हैं, स्मॉल कैप महंगे हैं, जो हम हर बार रिफ्यूट करते हैं और हम कह भी रहे हैं कंटिन्यूसली. आप मार्केट कैप वाइज अर्निंग्स ग्रोथ का समरी का जो टेबल देखेंगे राइट साइड में, क्वार्टर वन में लार्ज कैप की जो पैट ग्रोथ आई है वो 8.9 है, स्मॉल कैप की जो आई है 1.5 है, और मिड कैप की 18.3 है, एंड बीएससी 9.9 है. इफ अगर आप लोगों को याद होगा, आपने पिछला सेमिनार अटेंड किया होगा, तो हमने बहुत क्लियरली बोला था कि अब हम स्लोली स्मॉल कैप से वापस मिड कैप में जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि स्मॉल कैप में ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी पर मिड कैप में ग्रोथ इंक्रीज होगी. एंड हम उस स्ट्रेटेजी के तहत काफी सारा चर्न भी किए हैं. आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में देखा होगा, रिसेंटली हमने काफी चर्न भी किया है.
और उसमें हमारा यही इंटेंट है कि स्मॉल से हम मिड में मूव हो जाए। लेफ्ट हैंड वाला चार्ट जो है वो वैसे तो बहुत दिखने में अच्छा लगता है कि अ, अपना मार्जिन स्टेबलाइज है या हायर लेवल पे स्टेबलाइज हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत कम है, और इसका सब ये बहुत ही चिंता का विषय है फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बिकॉज एज ए कंट्री अगर हमको ग्रो करना है तो हमारी टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बॉटम लाइन ग्रोथ। बिकॉज अभी ऐसा लगने लगा है कि अपनी कंट्री का जो आरओसी है वो ऑब्सेशन बहुत ज्यादा हो गया है। हर प्रोमोटर को वही काम करना है जहाँ पे 20%, 18, 20, 25% का आरओसी है, एंड जहाँ पे आरओसी कम है वहां पे वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो बेसिकली R&D स्पेंड नहीं होता है और कैपेक्स नहीं हो रहा है। जबकि अगर आप चाइना का आरओसी देखेंगे तो वो करीब 11-12% है। उसीलिए वहां पे इतना रैपिड कैपेक्स होता है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट है। सो ऑब्वियसली हाँ, हम लोग का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में अगर आप इंडस्ट्री का देखेंगे तो अभी 77-78% पे पहुंच गया है। तो दैट इज वेरी हाई टाइम कि अब आपको कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले एलएनटी के चेयरमैन एमडी का भी कमेंट था कि वी आर सीइंग रिवाइवल इन प्राइवेट कैपेक्स, विच इज अ गुड साइन। बट मुझे लगता है अपनी कंट्री में आरओसी का ऑब्सेशन जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपेक्स ज्यादा होगा और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, और मुझे लगता है वो होना चाहिए, क्योंकि अब हमारा अगर इन्फ्लेशन रेट कम आएगा तो रिस्क फ्री रेट भी कम हो जाएगी। और अगर रिस्क फ्री रेट कम हो जाएगी तो जो इक्विटी का प्रीमियम लोगों को चाहिए अगर वो सेम भी रहता है तो भी आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एक्सपेक्टेशन है वो नीचे आ जाएगा। तो मुझे लगता है अगर अपना भी कंट्री का ये 18-19% से रिटर्न ऑन इक्विटी का एक्सपेक्टेशन 15-16% आ जाए तो काफी सारा पैसा R&D और कैपेक्स में जा सकता है। और लास्ट वाला चार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने बीएससी मिड कैप का प्रीमियम ओवर लॉन्ग टर्म दिखाया है, वो भी अभी काफी नीचे आ गया, तो काफी रैशनलाइजेशन हो गया पिछले कुछ मंथ्स में। सो अभी कोई लगता नहीं है कि मिड कैप की वैल्यूएशन में कोई भी बबल है। अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में अगर आप देखेंगे तो शेयर ऑफ बीएससी 500 कंपनीज रिपोर्टिंग पैट ग्रोथ अबव 25% हैज डिक्लाइंड। तो जो भी कंपनियां 25% से ऊपर ग्रोथ कर रही थी प्रॉफिट में, उनका शेयर गिरते जा रहा है। एंड लेस देन 0% जो ग्रोथ है उनका उनका ऑलमोस्ट स्टेबल जैसा है, और 0 to 10% में अच्छा इंक्रीज हुआ, और 10 to 25% में भी स्टेबिलिटी है, और मोर देन 25% में थोड़ा डिप है। इस क्वार्टर का अगर आप अर्निंग्स देखें तो देर आर सम लिटिल मोर नेगेटिव सरप्राइजेस देन पॉजिटिव सरप्राइज देन पॉजिटिव वर्सेस लास्ट प्रीवियस वन। बट अगेन इसमें याद रखना है कि लार्ज कैप में के कारण ये थोड़ा सा स्क्यूड है। मिड एंड स्मॉल मिड कैप में अपने को नंबर्स ग्रोथ पैट के अच्छे आए हैं। नाउ राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे कि कौन से सेक्टर में कैसे एस्टिमेट चेंज हुए, तो अगर आप देखेंगे इंटरनेट, ईएमएस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट और नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स यानी कि इक्विटी मार्केट स्टॉक, कैपिटल मार्केट स्टॉक, एएमसी स्टॉक्स, उनमें हमने अर्निंग्स का एस्टिमेट्स को पॉजिटिव चेंज में देखा है। और रिटेल, एपरल, ड्यूरेबल्स, प्राइवेट बैंक्स, इन सब में हमने नेगेटिव एस्टिमेट चेंज देखा है। So that is another interesting trend, which means that there is a real slowdown in the economy, and that's the reason probably government and RBI ने after bullet rate cut infusing liquidity, उसके बाद जाके ये जो जीएसटी का है ये एक्शन लिया है। ये हमारे पोर्टफोलियो में कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे हमारा एक्सपोजर है, और उनकी हमने जो मैनेजमेंट की कमेंट्रीज हैं उनको कंसोलिडेट करके सामने डाला है। तो वाटर ट्रीटमेंट में आप देखेंगे कि बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है। अ, थोड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स में डिले है उसका है, बट कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली रेलवे एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेट्रो में काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बैंकिंग एनबीएफसी में एक क्वार्टर का जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक बार जब रेट कट होता तो ट्रांजिशन, क्योंकि आपके एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का जो ट्रांजिशन होता है वो अलग अलग एक लैग पीरियड से होता है, जिसके कारण देर इज मिसमैच, बिकॉज ऑफ विच क्रेडिट कॉस्ट थोड़े समय के लिए बढ़ता है। मुझे लगता है
सितंबर क्वार्टर के बाद वो रिवर्सल आपको दिखेगा एंड बैंक्स वगैरह काफी अच्छा करेंगे। पाइप में हमने देखा है कि अदर देन स्टेनलेस स्टील पाइप थोड़ा सा स्लो डाउन है। पावर में हमने देखा था जो मानसून के कारण भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था, बट इंक्वायरीज बहुत स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। रिटेल में अगेन ऑनलाइन ग्रोथ है, डिजिटल एंड ऑनलाइन में अच्छा ग्रोथ है, और प्रीमियमाइजेशन में भी काफी अच्छी ग्रोथ है प्रीमियम प्रोडक्ट्स में। बट कंपटीशन भी आ रहा है, काफी सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं, काफी सारा इक्विटी मार्केट से पैसा रेज हो रहा है, तो पीपल आर कम्पीटिंग अमंग्स ईच अदर। ईपीसी में अगेन ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, ग्रोथ इज ड्रिवन बाय पावर, सीमेंट, स्टील सेक्टर्स। थोड़ा लंपी ऑर्डर होता है ईपीसी में हमेशा, बिकॉज उसका बैक जो है वो सपोर्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का होता है, कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का सब प्रोजेक्ट होता है, कुछ होता है, तो उसके कारण थोड़ा डिलेज होते हैं। बट मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे जिस तरह से प्राइवेट कैपेक्स पिकअप कर रहा है, आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट रिज्यूमिंग। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा मिक्स पिक्चर है, केमिकल फार्मा थोड़ा स्टेबल चल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अच्छा कर रहे हैं, बट ऑटोमोटिव में एक थोड़ा सा लैक ऑफ ग्रोथ दिख रहा है, और इसीलिए आई थिंक ये जो जीएसटी का चेंज है उससे वो एक बूस्ट कंजम्पशन को शायद मिलेगा। कंजम्पशन एफएमसीजी सेक्टर में काफी टाइम से ग्रोथ नहीं था। अभी जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इनकम टैक्स स्लैब में चेंज किया सब हुआ, उससे शायद थोड़ा आई थिंक देयर विल बी सम बेनिफिट। बट अगेन हमारा व्यू इस सेक्टर में बहुत क्लियर है कि ये सेक्टर बहुत मैच्योर है। हमारी देश की पॉपुलेशन 1-1.5% से बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ है वो 2-3% का है, तो ये सेक्टर 4-5% से ज्यादा ग्रोथ देगा नहीं, और उसके मल्टीपल्स आज भी 40-50 के चल रहे हैं। तो वी आर नॉट कन्विंस। सेकेंडली, आप अगर फैमिलीज को देखेंगे, सबके बच्चे जो है, या तो बच्चे कम हो रहे हैं या बच्चे एक ही हो रहे हैं, या कई लोग शादी भी नहीं कर रहे हैं, कई लोग शादी करके भी बच्चे प्लान नहीं कर रहे हैं। तो जो जितने भी ये कंपनियां हैं जिनके जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, नेस्ले हो या दूसरी जो कंपनीज हैं, उनके आप जो प्रोडक्ट बेबी केयर प्रोडक्ट्स है या उस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें सब में आप देखो कोई ग्रोथ ही नहीं है। राइट फ्रॉम द पाउडर्स, द मिल्क पाउडर्स, द अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर इन द बेबी केयर साइड, वहां पे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, एंड इट इज ए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। और इसीलिए जो हम देख रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं ये भी रेडी टू ईट जंक वंक में शिफ्ट हो रही है। बट मेरा मानना है कि बिकॉज आवर पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन टू नाउ 1.5%, वी विल नॉट सी मोर देन 6-7% ग्रोथ इन दिस सेक्टर स्ट्रक्चरली। एंड अगर वो नहीं आता है तो ये 40-50 के मल्टीपल मुझे नहीं लगता है कि सस्टेन होंगे, और इसीलिए आप देखेंगे पिछले 4-5 साल में इस सेक्टर में कोई पैसा नहीं बना है। फार्मास्यूटिकल में बहुत स्ट्रांग रिकवरी और डिमांड है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि अगर ट्रंप ने आके कुछ टैरिफ वारिफ लगाया, हालांकि अभी तक उसने नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो इस सेक्टर में टैरिफ वगैरह कुछ लगाएगा तो जो हेल्थ केयर कॉस्ट है यूएस में, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट, दैट विल गो अप वेरी शार्पली। तो इसीलिए इसको छोड़ के रखा है, बट वी नेवर नो, आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए कुछ गलत कमेंट कभी भी आ ही सकता है। कैपिटल मार्केट्स में रेगुलेटर ने कुछ कुछ चीजें चेंज किए हैं, ऑप्शन की डेट्स और एक्सपायरीज बहुत कुछ, उसके कारण थोड़ा एक बार हिल गया सेक्टर। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में बिकॉज अपना पेनिट्रेशन लो है, इट विल डू फिनोमिनली वेल। सिमिलरली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ये जो जीएसटी के चेंजेस की बातें चल रही हैं, अगर ये हुआ तो वी विल बी सीइंग सम रिकवरी। नेक्स्ट सेक्शन इज जियो पॉलिटिक्स। ये टेबल हम हर बार आपको दिखाते हैं, बिकॉज हर बार हर हफ्ते कुछ नया होता है। एंड अभी जो चल रहा है उसमें ऐसा दिख रहा है कि इंडिया एंड चाइना वापस आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, रशिया भी क्लोज है, पहले से ही क्लोज था, और यूएस हमसे दूर जा रहा है। बट वी डोंट नो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लीडर्स। आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट वंस दिस वॉर ऑफ यूक्रेन एंड रशिया स्टॉप्स, देन हमको पता चलेगा कि ये सब कुछ प्लॉटेड था। तो कुछ बोलना बहुत मुश्किल है। अ, हालांकि रियलिटी यही है कि हमारी डिपेंडेंसी यूएस में गुड्स पे तो बिल्कुल भी नहीं है, 0.69% है, और उसमें से काफी सारे एग्जाम्पशंस हैं। बट यस, सर्विसेज में पर्टिकुलरली काफी बड़ा एक्सपोजर है हमारा, हम नेट रिसीवर और फॉरेन एक्सचेंज है, तो वहां पे अगर कुछ प्रेशर टैक्टिक्स करने के लिए अगर वहां कुछ करते हैं तो देयर विल बी अ बिग चैलेंज।
This is very interesting and this is based on our interaction with lot of promoters. हमारा एक दूसरा डिवीजन भी है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसके कारण हम बहुत सारी कॉर्पोरेट से मिलते हैं। कल मैं चेन्नई था, मैं 3 कंपनियों से मिल के आया हूँ। ऑलमोस्ट हर वीक हमारा काफी काफी प्रमोटर से मिलना होता है, जो कोई ना कोई प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में है। एंड हम सबसे जो सुन रहे हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मिडिल ईस्ट पर्टिकुलरली यूएई बहुत क्लियर है कि ये तेल जो है ये 5-10 साल बाद इसका मतलब ये स्ट्रक्चरली एक तो इसका प्राइस नीचे ही जाने वाला है। एंड उनकी इकोनॉमी बहुत सालों तक इस ऑयल पे नहीं चल सकती, इसलिए वो लोग काफी सारे जो कंपनीज है वर्ल्ड वाइड उनको इनवाइट कर रहे हैं वहां पे फैक्ट्री डालने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। एंड 10-10 साल का रेवेन्यू कमिटमेंट देना कि 10 साल तक हम आपसे ही खरीदेंगे अगर आप यहाँ फैक्ट्री लगाते हो। 25% तक का कैपिटल दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं और बहुत तरह की सब्सिडीज दे रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर इकोनॉमी like what China did 15-20 years back. And अपने इंडिया के ही बिजनेसमैन वहां जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये काफी इंडिया को इससे कुछ सीखना चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो कट डाउन आवर इंटरेस्ट रेट्स, वी शुड ऑल्सो अलाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी शुड ऑल्सो गिव परमिशंस क्विकली, वी शुड अलॉट लैंड क्विकली। तो अपना ये एक फायदा हो सकता है। दिस इज अ केस स्टडी, देयर इज लॉट ऑफ डिटेल्स अवेलेबल। यूएई की गवर्नमेंट ने बहुत सारी साइट्स बनाई है, सऊदी की गवर्नमेंट ने बहुत सारी साइट्स बनाई है जहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो। एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्स यू, they enable everything, they meet you, and all kind of helps are offered. So it is a very serious challenge which can also happen to us if our country's promoters start going there and setting up factories and all. We will have a challenge on employment, we will also have challenge in the manufacturing side. Now this is फाइनेंशियल सेक्टर का है, और इंडियन वैल्यूएशंस जो हमें पता भी है काफ़ी महंगी लग रही है, बट रियल कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी वीक है इफ़ यू कंपेयर बोथ द चार्ट्स। वर्ल्ड मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो दिखाया हमने राइट हैंड साइड में, जो ऑरेंज लाइन जा रही है। एंड उसके साथ हमने वर्ल्ड जीसीएफसी डाला है, and you will see that the connection is breaking down in last 2-3 years. So when we consider these two together, a clear pattern emerge हो रहा है that the Indian and global stock markets are operating at historically high valuation. This collective behavior signals a potential overextension of market enthusiasm relative to underlying economic size and fundamentals. तो ये अगर आपको याद होगा पिछले वेबिनार में भी हमने दिखाया था कि हमारा जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो 2008 से अभी तक एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी सेम है। मैन्युफैक्चरिंग नीचे आ गया, 17% से 12% के आसपास आ गया है। एंड जो फाइनेंशियल मार्केट है वो सारा जो मैन्युफैक्चरिंग में लॉस हुआ है वो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज में चला गया है, विच इज नॉट गुड एक्चुअली, क्योंकि आपका ग्रोथ तो ओवर ग्रोथ से ही आना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट ठीक है, हम अंडर पेनिट्रेटेड तो चल रहा है, but I think this is little this is something which reflects that if we have to be developed economy, if we have to build our own manufacturing capability, if we have to become आत्मनिर्भर भारत and all, तो अपना मैन्युफैक्चरिंग को पिकअप करना चाहिए बहुत स्ट्रांगली, जो नहीं हो रहा है अभी तक। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट भी है और हमने बहुत इंटरेस्टिंगली हाईलाइट किया है कि हालांकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको WPI और CPI इन्फ्लेशन से मेजर करोगे, बिकॉज आपका रियल रेट तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने से ही पता चलता है, तो ये जो न्यूट्रल जोन जो 0% का होता है वहां पे जो मूव करता था उसकी जगह कभी कभी नेगेटिव में भी जाता था, अभी वो पॉजिटिव में है। सो वाइल इंटरेस्ट रेट्स आर लुकिंग लो बट द रियल इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, दे आर इन द पॉजिटिव टेरिटरी। और ये हाई रहने से हालांकि इन्फ्लेशन रिमेन्स इन ए स्टेबल जोन, बट मॉनेटरी कंडीशंस रिफ्लेक्ट्स दैट देयर इज रेस्ट्रिक्टिवनेस, एंड वही हमें दिख रहा है कि प्राइवेट कैपेक्स बहुत हद तक उसके लिए ही पिकअप नहीं कर रहा है, एंड ये अपने ग्रोथ को भी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। एंड आई थिंक आरबीआई जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहा है एंड मैक्रो जो कंडीशंस है कोर इन्फ्लेशन के, आरबीआई अगर थोड़ा कट करता है तो ये पॉजिटिव जो है
जो आप देख रहे हैं न्यूट्रल लाइन के ऊपर है और ऑलमोस्ट 3.9% पे बैठा है, इट कैन कम डाउन. सो द ओनली चैलेंज इज दैट जब तक फेड रेट कट नहीं करेगा तब तक आरबीआई को अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि रुपये कितना स्लाइड हो जाएगा. हालांकि रुपये को थोड़ा स्लाइड होना जाना चाहिए, तभी अपना एक्सपोर्ट्स पिकअप होगा और जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो नलीफाई होता है. ये एक टेबल है लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें हम रूरल वेजेस को दिखा रहे हैं. तो रूरल वेजेस ठीक ठाक है, होल्ड कर रही है. बट अर्बन वेजेस में हमको पता है कि आईटी सेक्टर बहुत चैलेंजिंग टाइम से निकल रहा है. काफी सारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं. एआई का बहुत डिस्ट्रप्शन है. अभी हाल ही में हमारा एक इंटरव्यू भी हुआ था, एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें हमने एआई पे बहुत चीजें बताई थी क्या हो रहा है. एंड हमारा क्लियर मानना है कि जो फर्स्ट वेव था 2020 तक, जितने भी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन हुए उसमें लार्ज कैप सबसे पहले बेनिफिट करते थे, फॉलोड बाय मिड एंड देन स्मॉल. जब 2020-21 का जो पीरियड था उसमें सबसे बड़ा रिकवरी मिला मिड कैप को, जब माइंट्री, एलटीआई, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, केपीआईटी, ये सारे स्टॉक 10 to 15 टाइम्स हुए 2 साल के पीरियड में. आई थिंक ये जो थर्ड वेव है ये मोर ऑफ स्मॉल कैप का वेव है, बिकॉज स्मॉल साइज कंपनीज में एक तो मिडिल लेयर उतना ज्यादा है नहीं, जो जो कॉस्ट सेंटर है, नॉट रेवेन्यू सेंटर. दूसरा, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एआई के वो बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, फ्यू $100,000 के आ रहे हैं. तो वहां पे काफी सारा जो छोटी कंपनियां उनको बेनिफिट हो रहा है. तो हमारा मानना है कि जो मूव आपने 5-10x का 2021-22 में मिड कैप में देखा था, शायद वो स्मॉल कैप में अभी आपको दिखेगा. एंड इफ यू सी दिस टेबल, वेज बिल का जो हमने दिखाया है, हालांकि रूरल में मोटा मोटी स्टेबल मेंटेन्ड है. द ले ऑफ रिस्क इन आईटी सेक्टर, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है एम्प्लॉयमेंट का, वहां पे हमको रिस्क लग रहा है. एंड दिस कैन इम्पैक्ट द डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ऑल्सो. एंड इसीलिए ये एक रिस्क है जो ओवर एंड अबव द नॉर्मल वैल्यूएशन रिस्क एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में है, ये एडिशनल रिस्क है. नाउ हाउ वी मैनेज एंड हाउ वी मूव थ्रू दिस. सो एक चीज हमारी प्रिंसिपल थी कि वी नेवर वांटेड टू चर्न, क्योंकि चर्न करने से ब्रोकरेज भी लगता है और कैपिटल गेन टैक्स का भी इम्पैक्ट आता है और कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती है. अनफॉर्चुनेटली आपने अगर पिछले 1 साल में देखा होगा जिस तरह से हमने चीजों को फेस किया है, पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर यूक्रेन रशिया ऑन एंड ऑफ एग्रेसिव होते जाता है. एंड अभी ट्रम्प का जो टैरिफ्स को लेके इतना ऊपर नीचे हो रहा है, तो जो चर्न है, जो रोलिंग चर्न है, अ, वो आप देखेंगे तो काफी फास्ट अभी मूव होने लगा है. 2000 में हमने देखा था कि कैपिटल गुड्स ने रैली ड्राइव किया था. उसके बाद 2010 में कंजम्पशन, सो यू आर एबल टू कैच अ सेक्टर. बट अभी आप देखेंगे तो कोई भी एक सेक्टर नहीं है जो लंबा चल रहा है. सब कुछ फटाफट चर्न हो रहा है. कभी आईटी चलता है, कभी मेटल्स चलता है, कभी कैपिटल गुड्स चलता है, कभी रियल एस्टेट चलता है, कभी बैंक्स चलते हैं. तो जो हमको 5-10 साल एक थीम पे काम करके, रिसर्च करके, एक व्यू ओपिनियन बना के और हम कर पाते थे वैल्यू वेल्थ क्रिएट, वो अभी अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल जो सिचुएशन है उसके कारण वो मौका ही नहीं मिल रहा. चीजें बहुत फास्ट चर्न हो रही है. एंड we think that it will settle down in next few months, and it must settle down. नहीं तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन या बड़ा वेल्थ क्रिएट करने में बहुत चैलेंजेस आएंगे. हमारा स्ट्रेटेजी हमेशा से बॉटम अप रिसर्च रहा है एंड वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन दैट. एंड आई फर्मली बिलीव कि मार्केट में लास्ट 3-4 साल जो आपने देखा कि कुछ भी चला है, किसी ने कुछ भी खरीद लिया, सबका पैसा बनाया है. आपने एज ए रिटेल खुद भी कुछ डायरेक्ट इक्विटी किया, वो भी चला है. अगर आपने कहीं किसी को दिया है तो वो भी चला है. मुझे लगता है वो समय अभी खत्म हो गया है. हमारे पास वो समय नहीं है. अभी हमारा जो समय है वो स्टॉक स्पेसिफिक है, रिसर्च ड्रिवन बॉटम अप आइडियाज है. और मुझे लगता है कि एक क्वार्टर के बाद बीएफएसआई बहुत अच्छा करेगा. काफी सारे स्टॉक लाइक कैनरा बैंक 4-5 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे आ गए हैं. एसबीआई इतना बड़ा पैट पोस्ट करता है और कोई बैड लेंडिंग हो नहीं रहा है. आई थिंक बीएफएसआई विल बी अ वेरी बिग विनर. कैपिटल गुड्स विल आल्सो बी अ बिग विनर बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हो गया और हम लोग कैपेसिटी पे 78-75 पे हैं. तो अभी नया कैपेसिटी बिल्ड होगा तो इट शुड डू वेल. एंड थर्ड जो हमारा है रिटेल. और
हम लोग रिटेल में उन सेक्टर्स में खेल रहे हैं जहाँ पे वॉल्यूम कैन चेंज मीनिंगफुली। एक तो हम क्विक कॉमर्स खेल रहे हैं, जहाँ पे हमने स्विगी जो सबसे रीजनेबली प्राइस्ड है विद इन द सेक्टर उसको लिया है। एंड थोड़े थोड़े दूसरे स्टॉक्स हमने लिए जहाँ पे हमें लगता है कि रेट कट, जो जीएसटी रेट कट हो रहा है उसके कारण हमको बेनिफिट मिलेगा। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी हम देख रहे हैं रिटेल स्पेस में बहुत बड़ी एक तेजी है, तो उसको भी हम, उसके प्रॉक्सीज को भी हम प्ले कर रहे हैं। हम हर बार कुछ ना कुछ इमर्जिंग आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मुझे याद है हमने आपके साथ लैंडमार्क कार शेयर किया था, शायद इन्फोबीन्स भी शेयर किया था, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बीएससी भी शेयर किया था। इस बार हम ये दो नए आइडियाज पे हमने बहुत डिटेल में काम किया था। एक डेटामेटिक्स है, ये बॉम्बे, इसके प्रमोटर्स बॉम्बे बैठते हैं। ये कंपनी एआई में है, छोटी कंपनी है, 5,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एआई में। एंड हम रिसेंटली उनके प्रमोटर से और एमडी से मिले, एंड वी लाइक द वे उनका खुद का सन भी स्टैनफोर्ड से एआई में स्पेशलाइजेशन करके आया है, एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया बहुत कम समय में। they have also sold their solutions to few of the very large corporates in India, and they are doing phenomenally well. हमने उनसे फीडबैक भी चेक किया। So this is something which excites us. स्टॉक बहुत सस्ता भी है और डाउनसाइड रिस्क भी बहुत कम है, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो हमें कोई चैलेंज नहीं लगता है। एक दूसरी कंपनी गुजरात अंबुजा एक्स लिमिटेड, बहुत ही लो प्रोफाइल काइंड ऑफ प्रमोटर्स हैं, किसी से मिलते नहीं है, कुछ करते नहीं। हमारा कुछ एक पास्ट का प्रोफेशनल रिलेशन था, उसके कारण हम मिल पाए थे। ये कंपनी पहले तो सिर्फ सोयाबीन और मेज में थी, अभी सोयाबीन को काफी कम कर दिया है। मेज में मेज के डेरिवेटिव्स बनाती है, प्राइमरली स्टार्च एंड देन फ्यू अदर कंपोनेंट्स। बट अभी ये लोग धीरे धीरे, इनका जो सन है वो यूएस से पढ़ के आया है, बहुत स्मार्ट है, मैं उससे भी मिला था। एंड दे आर ट्राइंग टू build a very strong franchise of specialty chemical which are derivatives of starch. ऑलरेडी ये कंपनी वर्ल्ड में नंबर 9 पे, और पहले 8 कंपनीज जो हैं वो सारी यूएस एंड चाइना की कंपनीज है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है, क्लोज टू बुक वैल्यू है, बहुत सारा कैश पड़ा है बैलेंस शीट में। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो 8-9% दिखेगा, लेकिन आप कैश निकाल के देखेंगे तो 17-18%, 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। नई कैपेसिटी 1 अक्टूबर से आ रही है, रेवेन्यू में बड़ा जंप आएगा, प्रॉफिट में बड़ा जंप आएगा। मुझे लगता है 5-7 साल में सेम लाइक लैंडमार्क कार्स कैन बी अ वेरी बिग वैल्यू क्रिएटर फॉर अस। सो दिस इज ऑल विच वी हैव ऑन द प्रेजेंटेशन साइड। हमने इंटेंशनली थोड़ा सा आज इस तरह से रखा था कि आप लोगों के साथ ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स कर पाए, बिकॉज आई नो मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है, देयर विल बी सम एंजाइटी एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक द क्वेश्चंस एंड आंसर एवरीथिंग। Sandeep ji will wait for just one second. Sandeep ji, will wait for a couple of minutes for the question to assemble. Dear participants, if you have any questions, please feel free to drop them in the chat box. Sandeep ji will take the first question. It's on the GST reforms. GST 2.0 reforms are expected to add 0.5 to 0.7 to GDP. What's your house view on whether this gain is one time or structural? Padma, you want to answer that and then I will add? You are on mute, Padma. Yes, indeed. Yes. So, yeah, it's a good question. So, see, let's take it this way.
number one, obviously, once these reforms are implemented, there will be a near-term disruption wherein, like for example, जैसे ऑटोज जैसे सेक्टर है, तो उसमें अभी क्या होगा, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है तब तक एक डिमांड पोस्टपोनमेंट हो जाएगा, जिसके वजह से कि अभी जो फेस्टिव सीजन में जैसे बहुत ज्यादा गाड़ियां बिकती है, सो वो सब नहीं होगा। और फिर जैसे ही ये डिसीजन आएगा, बिकॉज सितंबर में वी हैव द जीएसटी काउंसिल दैट्स गोइंग टू मीट, सो वंस द डिसीजन कम्स, then we'll see that there'll be a bunching up of demand. तो हो सकता है कि 2-3 महीने तक एक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आएगी कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होगा, बिकॉज थोड़ा पोस्टपोनमेंट और ये सब चलेगा। गोइंग फॉरवर्ड माई सेंसेस कि ये सिंप्लीफिकेशन से दो चीजें होंगी। एक तो कंप्लायंस बढ़ जाएगा, बिकॉज अगर ज्यादातर आपकी एसेंशियल गुड्स अगर 12 से 5% पे मूव हो जाते हैं, तो देन देयर इज नो बिग इंसेंटिव टू एक्चुअली इवेट टैक्स। और स्पेशली आजकल जितना डिजिटलाइजेशन हो गया है, गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड्स तो ऐसे ही जा रहा है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि कैसे जीएसटी रेट्स होते रहते हैं, जहाँ वो लोग पानी पूरी वाले और ऐसे भी छोटे छोटे वेंडर्स जिनका बहुत ज्यादा टर्नओवर है उन्हें भी पकड़ पा रहे हैं। तो ये सब ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो अगर आपका ज्यादातर चीज जो कि एसेंशियल्स है, जो कि डे टू डे यूज होता है, अगर वो 5% ब्रैकेट में है, तो आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है या इवेट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा जो शिफ्ट है वो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा। बट देन वी कैन नॉट रूल आउट दैट हो सकता है कि इन द इनिशियल 2 to 3 months or maybe even 6 months we will see a one time effect which is much more, or which is more exaggerated, and that will be higher than the sustainable rate. Yeah, so Sandeep, if you want to add anything. नो एब्सोल्युटली। सो अभी कुछ 2-3 महीने तो आपको दिखेगा कि अभी हम लोग ऑलरेडी हमने चैनल चेक भी किया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह माल लेने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि रेट कट हो जाएगा। बट जब वो क्लैरिटी आ जाएगी तो वो लोग एक साथ इन्वेंट्री फिल करेंगे क्योंकि पेंटअप डिमांड होगा। और मेरा मानना है कि आपको एक ऐसा समय दिखेगा दिसंबर के आसपास या जनवरी के आसपास कि ये सारे स्टॉक्स जिनमें जीएसटी कट आ रही है बहुत अनाप शनाप वैल्यूएशन पे चले जाएंगे, एंड उसके बाद एक नॉर्मलाइज डिमांड आएगी। तो आई थिंक कि जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वाला शिफ्ट है वो स्ट्रक्चरल है, बट डिमांड बिकॉज ऑफ कट इन जीएसटी कैन नॉट बी वेरी स्ट्रक्चरल। दैट इज व्हाट माय व्यू इज। एक बार आपको और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। So we have to be very careful on how when we buy the stocks and how so we are, even if we want to buy something, we will buy when numbers are very bad, which I think will happen in next 40-45 days. तो हमें अगर कुछ सस्ता मिलेगा, अच्छा लगेगा, then we will buy. एंड जब डिमांड का पीक होगा, जब इन्वेंट्री रिफिल होगी जनवरी फरवरी में, अगर हमें 50% बन जाता है 3-4 महीने में, तो वी विल सी हाउ टू रीएलोकेट आवर पोर्टफोलियो। Sandeep ji, we have the second question. Post S&P upgrade, which sectors, issuers stand to benefit most in terms of borrowing cost in global debt markets? See, I think इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब अपना रेटिंग अपग्रेड होता है तो इट इज अ कंट्रीज रेटिंग अपग्रेड, राइट? सो एवरीवन गेट्स दैट मच बेनिफिट, नो डाउट। Bigger borrowers obviously stand to benefit more because their ability to negotiate, their ability to borrow is more. But इंडिया में आप देखेंगे तो जो borrowers इंटरनेशनल लेवल पे जाके borrow करते हैं बहुत ही कम प्लेयर है, बहुत ज्यादा प्लेयर नहीं है, और जो borrow भी होता है वो रूटेड होता है। But I think the upgrade in the country's rating will definitely bring down the equity risk premium once this tariff settles. And once that equity risk premium goes down, I think then bond market will also start slowly reacting, and there will be a long-term impact. This is more structural. I will say GST is probably unorganized to organized, but upgrading the rating of the country is very, very structural. On the similar lines, we have another question. Earnings downgrades were widespread. Do you expect this to reverse in second quarter FY26 with GST reforms, RBI rate cuts, etc.? See, we are still stuck with what is happening on the tariff front, because if you ask my honest view, I am very clear that Putin will not do any kind of settlement. He is very clear. He wants to fight war till, like, I don't know when. Because if you see USSR history
and Putin, today's Russia is a part of it. हमेशा इन लोगों ने जब तक ये बैंकरप्ट हुए तब तक लड़ते रहे हैं. So fighting is their passion. So it is very tough. I am telling you today with lot of confidence, nothing will happen with Putin. Nothing. Whatever they agree, he will, after agreeing in 24 hours, he will put another missile on Ukraine. I can guarantee you. So this is not happening for sure. No settlement, nothing will happen. And Putin will keep on doing this. Only way Putin can be stopped is that if NATO and US comes together and they start, they take it as a war and they say that we will finish you, and Russia is 60-70% finished, then probably, there is a chance that there will be assassination of Putin and then things stop. I can guarantee you nothing will happen with Putin. He will just mislead Trump and the whole world. They are like that. They have always done that. They are our friends because they provide us arms and ammunition, so we can't say anything openly, but you see the history of USSR. They are like that. They will not, it is not going to settle for sure. So Trump this, will lose interest over a period of time. It will So- become a no event like what we are seeing in Israel and Hamas. so the current situation is going to be a new normal going forward. Yeah, means people, once Trump stops tweeting, no one is worried about Russia, Ukraine. मतलब ये तो ट्रम्प ने फालतू का वापस से इसको वो किया है. मतलब सब भूल गए थे. मतलब चल रहा था 3-4 साल से, हर रोज 7,000-8,000 लोग मरते हैं. किसी को पता भी नहीं था. ये वापस से फालतू का 3-4 महीने 2 महीने से ट्वीटिंग चालू करके वापस जगा दिया. बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है. मैं आपको बता रहा हूँ, ये गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के मैनेजमेंट से मैं मिला था परसों या उसके प्रीवियस डे. तो हम, यूक्रेन सबसे बड़ा सप्लायर है मेज का. बोल रहे पूरे वर्ल्ड को आज भी मेज जा रहा है यूक्रेन से, आराम से जा रहा है. वार एक छोटे से हिस्से में चल रहा है, यूक्रेन सब कुछ कर रहा है. तो आई थिंक अदर देन ट्विटर देयर इज नो वार, and whatever war is there, it has not changed and it will not change also in my view. It will become no event. Another question is current correction in market is due to tariff or slowdown in earnings. It is due to uncertainty. स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है. जिस दिन सर्टेनिटी आती है, समझो आज ट्रम्प बोल देता है कि हम 50% इंडिया पे लगाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, हमारा मार्केट एडजस्ट हो जाएगा एंड वी विल then people will adjust that to that new reality and we will start buying companies which will be low impacted, will buy companies which will be highly impacted and हम वो अर्निंग्स में ले लेंगे कि समझो कि इस कंपनी का इतना अर्निंग्स कट आने वाला है, इसका इतना आने वाला है, उसका वैल्यूएशन रिवाइज कर देंगे, वो टारगेट प्राइस हो जाएगा, मार्केट सेटल हो जाएगा. प्रॉब्लम है कि क्या होने वाला पता नहीं है. जब भी अनसर्टेनिटी है तब मार्केट सबसे ज्यादा गिरता है. अनसर्टेनिटी जब खत्म होती है तो मार्केट चलता है. सिंपल है. अभी हम कोई स्लो डाउन में कोई हमको स्लो डाउन से कोई लेना देना नहीं. हमको तो वो स्टॉक, अपने को कितना स्टॉक चाहिए, 5,000 में से 40 स्टॉक चाहिए जो अगले 20 साल में 100 गुना हो जाए. बस अपने को उससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं. 40 स्टॉक तो हमको आराम से मिल जाएंगे. मेरे को अभी ऑलरेडी 2-3 स्टॉक मिल गए इस साल, अगले साल 2-3 और मिल जाएंगे. हमको तो 4-5 साल में 40 स्टॉक मिल जाने वाले हैं. उसके बाद पुतिन लड़े, ट्रम्प लड़े, मीन्स ठीक है, क्या कर सकते हैं. वी कांट स्टॉप पीपल. We have to live with it. The another question is, what are your thoughts on the impact of tariff on EMS sector and impact of additional 25% sanction on oil and gas sector? See, EMS सेक्टर में चैलेंज है बिकॉज ये जानबूझ के किया जा रहा है थोड़ा, क्योंकि प्रेशर टैक्टिक्स है. मैं कल ही एक पौंडीचेरी में बहुत बड़ा EMS प्लेयर है, उससे मैं चेन्नई में मिलके आया हूँ एंड दे वर ऑल्सो वरीड बिकॉज ऑब्वियसली थिन मार्जिन बिजनेस है एंड इस टाइप का टैरिफ वैरिफ कुछ लगेगा तो थोड़ा चैलेंज होगा. सो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल. बट अच्छी बात यह है कि डिक्सन ने तो अपने आप को हेज कर लिया है. पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का उतना कोई एक्सपोजर नहीं है. कुछ एक सेक्टर है जहाँ पे पीसीबी वगैरह बनते हैं, वहां पे रिस्क ज्यादा है, बट वो बहुत छोटी छोटी कंपनियां. मतलब आई डोंट सी अ सीरियस रिस्क इन द स्टॉक्स. पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो हुआ है उसमें यूएस टैरिफ का कोई लेना देना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. On the similar line, Sandeep ji, there is another question. What do you think EMS companies will perform in the near future, as they have performed very well in the past? Please put on your views on this. ईएमएस कंपनीज में एक ही चैलेंज है जो हम फेस करें. मैं अभी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट से भी मिला था एंड आई मेट 2 more मैनेजमेंट इन द सेम स्पेस. हमारा जो
बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग है कि हर हम कोई पहले हम असेंबली करते थे, राइट? उसके बाद हम मोल्ड बनाने लगे, फिर हम अभी थोड़ा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन हो रहा है। मतलब मारुति सुजुकी के साथ जब हमारा 1980s में टाई अप हुआ था, 1%, पहले साल में 1% हमारा कंट्रीब्यूशन था, 99 इम्पोर्ट था। टुडे 90% प्लस इज ऑफ द मारुति इज मेड इन इंडिया एंड 10% इज इम्पोर्ट, 10% कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेड। सिमिलरली 5-6 साल पहले जो फोन बनता था उसमें 1% कंट्रीब्यूशन था, अभी 16% पे हम आ गए। तो मेरा मानना है ईएमएस में भी वही हो रहा है, हर साल एक आधा आधा परसेंट हो रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज जो ईएमएस में हो रहा है वो एक ही हो रहा है कि जो भी प्रमोटर है वो ये बोल रहे हैं कि चाइना जो है वो बोल रही है कि आप हमारे साथ जेवी कर लो, हम आपकी कंट्री में प्लांट लगा देंगे, पैसा लगा देंगे, सब कर देंगे, लेकिन जहां भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो कंपोनेंट वो सेम टू सेम वे में भेजना चाहते हैं। वो प्राइस का लड़ाई नहीं कर रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, रिवर्स इंजीनियरिंग करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसका सॉल्यूशन तो यही है कि गवर्नमेंट को जो पीएलआई स्कीम चलाई, मेरे वो सक्सेसफुल है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को आरएनडी की पीएलआई स्कीम चलानी चाहिए, आरएनडी पैसा रिइम्बर्स करना चाहिए। गवर्नमेंट जब तक आरएनडी पे प्रेशर नहीं डालेगी, ये सीएसआर हटा के आरएनडी कर देना चाहिए। जब तक आरएनडी नहीं होगा आपको, और आरएनडी में क्या 18 महीने लगने वाला है, छोटा से छोटा कंपोनेंट बनाने के लिए 18 महीने लगेंगे। तो हमको आरएनडी जब तक नहीं मिलेगी तब तक इसी तरह से चलते रहेगा, हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते रहेंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रेयर अर्थ ऐसा नहीं है, रेयर अर्थ मेटल इंडिया में नहीं है। इंडिया में बहुत बड़ी क्वांटिटी में रेयर अर्थ मेटल मिलता है, लेकिन उसको प्रोसेसिंग कैपेसिटी कहीं नहीं है वर्ल्ड में, सिर्फ चाइना के पास 90% है, जिसके कारण वो ब्लैकमेल कर रहा है। उसने तो सिर्फ दुनिया को एक झलक दिखाई है कि मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद वो कुछ कुछ सप्लाई चेन को पूरा चोक करके रखा ही है यूएस के लिए। उसलिए यूएस ट्रम्प हम पे 50% लगाता है, वो ज्यादा रशिया का क्लोज फ्रेंड है, ज्यादा माल लेता है रशिया से, फिर भी उस पर कुछ नहीं लगा रहा है, उसको फ्रेंड जैसे ट्रीट कर रहा है। तो there is challenge. Our country needs to work very aggressively on two things: one R&D and improve your manufacturing, second tourism. हम दुनिया में जाते हैं, अभी हम कहाँ गए थे फॉरेन कंट्री घूमने, तो हमने देखा था वहाँ कोई खंडर है, उसको भी बोल रहे हैं कि हेरिटेज है। हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं और इतनी अच्छे सुंदर है। ये कंट्री में, वर्ल्ड में सारे बिग कैट्स मिलते हैं, लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, वर्ल्ड में, और पैंथर। वर्ल्ड में आप मुझे बताओ कोई कंट्री में पांचों वाइल्ड कैट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, अपने कंट्री में वन हॉर्न राइनो मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, फिर भी हमारा टूरिज्म नहीं डेवलप होता है। हम वर्ल्ड वर्ल्ड में 75 कंट्रीज है जहाँ पे टूरिज्म इतना अच्छा कर रहा है। और टूरिज्म अच्छा करने के लिए आपको पोर्ट बिल्ड करना पड़ेगा, एयरपोर्ट बिल्ड करना पड़ेगा, रेलवेज बिल्ड करने पड़ेगा, जो गवर्नमेंट नितिन गडकरी कर रहा है। लेकिन वो खुद बोल रहा है कि हम बनाते हैं हर रोज 22 किलोमीटर है, लेकिन 10 किलोमीटर टूट जाती है। सो देर इज करप्शन, देर इज प्रॉब्लम। तो अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, टूरिज्म होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, और उस जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की भी डिमांड बढ़ती है। एंड सी आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज हमारा जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो दूसरों के पास नहीं है, वो डेमोग्राफी है। हमारी एज हमारे साथ 15 साल और है, तो मुझे उम्मीद है कि वी विल डू वेल। सेल्फ कंजम्पशन इकोनॉमी है, 1.5% पॉपुलेशन ग्रोथ है, 3-4% पर कैपिटा इनकम है, तो 5-6% ग्रोथ का तो कोई चैलेंज नहीं है, विच इज अ गुड ग्रोथ। And I think, government will realize and it will promote these things, and they will, if people are also understanding. And I think the biggest social service which any entrepreneur or promoter can do today in the world is create jobs. And I think people are realizing that. Sandeep ji, there is one interesting question. In one of your interview with CNBC, you mentioned that you were not very positive on IT sector. Do you don't feel it can be a very good contra call and IT may bounce back sooner than later? सी आईटी में क्या है कि ग्रोथ नहीं है। अगर आप टीसीएस का रिटर्न देखेंगे 5 साल का, स्टॉक रिटर्न इज 5.5%, एचसीएल टेक का 12% है, इन्फोसिस का 7.5-8% है, और रेवेन्यू ग्रोथ 2-3% से ऊपर आ नहीं रहा है। तो 2-3% की रेवेन्यू, 4% या 5% रेवेन्यू ग्रोथ के लिए 20 का 25 का मल्टीपल है, 5 का पेग रेशियो देके कोई मीनिंग नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि आईटी में लार्ज कैप में कोई पैसा बनेगा। मिड कैप बहुत महंगा है, स्मॉल कैप्स में पैसा बनेगा, और हमने स्मॉल कैप एक्सपोजर लिया है। हमने भी इन्फोविन में 15 दिन में 50% बनाया है, ऐसा नहीं है हमने छोड़ दिया है। और अभी हमने फिर से डेटामेटिक्स भी लिया है, एंड वी नो दिस सेक्टर। मतलब यू हैव टू ट्रस्ट अस ऑन एटलीस्ट आईटी। uh, in banking or NBFC, are you tracking early stress in retail unsecured loans in the form of buy now, pay later,
or personal loans or credit cards beyond official disclosures? Yes, there is pain, but good part is that रेट कट इतना हो गया है ना, तो रेट कट होता तो पेन इवेड हो जाता है, निकल जाता है. दूसरा उसका जो डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट में क्या होता है, जो अपन ने इंडस्ट्री बैंकिंग का सफर किया था ना पास्ट में 2008 से 15 16 17 तक, उसमें क्या था, जो होलसेल बुक थी ना उसमें प्रॉब्लम था, तो वहाँ बड़े बड़े लॉसेस आते हैं, बड़े बड़े राइट ऑफ्स आते हैं. रिटेल में वो एक एडवांटेज है कि छोटे छोटे होते हैं, एंड मुझे नहीं लगता ये कोई मटेरियल रिस्क है, एंड लार्ज पार्ट ऑफ इट इज बिहाइंड नाउ. There's a last question. Market cap to GDP is stretched. Do we expect to normalize near long-term average? Are there any risk in immediate market correction due to this? तो मार्केट कैप टू जीडीपी में ऐसा होता है, दो फैक्टर है. मार्केट कैप टू जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ भी देखना चाहिए साथ में. तो जहाँ ग्रोथ है वहां पे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो ज्यादा ही होगा, एंड राइटफुली सो. मैंने लास्ट टू लास्ट वेबिनार में हमने दिखाया था, वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सारे मार्केट 18-19% पे, 18-19 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, हम 21 पे कर रहे थे, 22 पे कर रहे थे, पर हमारा ग्रोथ 6-6.5% है, उनका ग्रोथ 1.5% है. ऑब्वियसली आई थिंक देर इज पॉइंट. सेकेंडली जो ये अपग्रेड जो S&P का आता है और जो इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं, उसके कारण भी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियोज विल गो अप. Any other questions? Okay. Sandeep, that's it. That was the last question. That brings us to the end of the today's webinar. We sincerely appreciate your participation and hope all the participants would have found the session insightful. Wishing you a wonderful weekend ahead. Thanks a lot.